respected teachers and dear all. We gathered here to celebrate 72nd Republic Day. First of all, I would extend a very warm greeting to all of you and I wish you a very happy Republic Day. Today is the day when every Indian comes together to show the world our strength. We have different religion, different language, different culture and customs, but above this we are Indians. Dear audience, 26 January is the day of pride for every Indian. On this day, the Constitution of India came into effect, which ensures the fundamental rights of every citizen, such as right to equality, freedom, culture, education, caste and religion. Dear brother, today we are not only celebrating the Constitution of India, but also remembering the martyrs, the real heroes of our nation, who struggled to free India from British Empire and sacrificed their life of the sake of our country. Dear audience, so let's pay tribute to our freedom fighters, martyrs from the bottom of our hearts and celebrate Republic Day together. नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न उसका न इसका, ये सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे. Dear audience, before start program, I would thank our guests, all MF members who are working for the welfare of our generation, especially Dr. Adnan Sahab, who is among dynamic personalities, and Samim Mustaq Sahab, who is the director of MEF Coaching Center and is very eager beaver to increase the education in Pura Maruf. Dear audience, now I want to start our program without any delay. It is our tradition that when we start any program, we start it with recitation of the Holy Quran. Today also, I would begin our program with recitation of the Holy Quran. For this noble task, I would request Hafiz Sohail Abdullah Sahab, please come and give a wonderful starting by reciting the Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. It was Mr. Hafiz Sohail Abdullah Sahab. He was reciting the Holy Quran in very wonderful voice. Dear audience, it is also our tradition that
After the recitation of the Holy Quran, we glorify the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For this purpose, I would like to call Janab Hudayfa Al-Jadi Sahab. Please come and recite Naat. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर अदनान साहब और निजामत के फराज अंजाम दे रहे हैं मौलवी आदिल जमाल साहब। मैं नबी पाक का मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। नाते मुस्तफा की जबे कोई गुनगुनाता है, नाते मुस्तफा की जबे कोई गुनगुनाता है। ये ज़मीन क्या सुने करे, ये ज़मीन क्या सुने करे, अर्श झूम जाता है। ये ज़मीन क्या सुन करे, अर्श झूम जाता है। और पहला शेर बतौर खास राजा फरमाए, आफियत आफियत इसी में है कि सवार लो खुद को, कि सवार लो खुद को। आफियत इसी में है, हर अमल मोहम्मद का, हर अमल मोहम्मद का आईना दिखाता है। हर अमल मोहम्मद का आईना दिखाता है। और बहुत ही प्यारा शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, ठोकरों ठोकरों में जिसकी है ताज बादशाहों के, ताज बादशाहों के। ठोकरों में जिसकी है सादगी सादगी का ये आलम, सादगी का ये आलम बकरियां चराता है। सादगी का ये आलम बकरियां चराता है। और राह इश्क में हायल कोई शय नहीं होती, कोई शय नहीं होती। राह इश्क में हायल चीर कर समुंदर को, चीर कर समुंदर को रास्ता बनाता है। चीर कर समुंदर को रास्ता बनाता है। और जो दिया जलाया था 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले जो दिया जलाया था, वो दिया ज़माने में, वो दिया ज़माने में आप जगमगाता है। वो दिया ज़माने में। और वक्ता भी दुआ के साथ मुलाज़ा फरमाएं, नात का हर की मिसरा कह रहा है फायक ये, कह रहा है फायक ये। नात का हर की मिसरा
मेरा मदह मुस्तफा में तो मदह मुस्तफा में तो सब डूब जाता है, तेरे कर समंदर को रास्ता बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। And recite national anthem. कर ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां
जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा गए दुश्मन दौरे ज़मां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में। मालूम क्या किसी को दर्द ने हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। Dear audience, now it is the time to listen to the speaker of MEF Coaching Center. As the first speaker, I would like to call Mr. Rashid. Please come and deliver his speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, honorable guests, respected teachers, and dear all, I am going to speak about Republic Day. First of all, I would like to say thank you because you have given me such a great opportunity to speak some words on Republic Day. Dear audience, today we all are here 72nd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day in India every year on 26th of January, as the Constitution of India came into effect on this day. We are regularly celebrating Republic Day of India since 1950. As on 26th of January in 1950, Indian Constitution came into effect. Dear audience, India is a democratic country where the public is authorized to elect its leader to lead the country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India. Since we got independence from British rule in 1947, our country has developed a lot and counted among the powerful countries. But some drawbacks have also arisen, such as inequality, poverty, unemployment, corruption, etc. Dear audience,
a pledge today for solving such problems in society, to make our country the best country in the world. Here I conclude my speech. Thank you. It was Mr. Rashid Saab. He was delivering his speech in very wonderful way. Dear audience, as the next speaker, I would like to call Mr. Abu Zura. Please come and deliver his speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Honorable guest, respected teacher, and dear all. First of all, I would like to thank you for giving me this golden opportunity to speak some word on the topic of education. I would like to deliver a speech over the importance of education at this great occasion in front of you. Dear audience, education is very important to all of us. Our parents make us learn many things at home and then send us to school after the age of 3 years. Our home are the first education institute where we learn how to behave to others and other skills. However, school education is very necessary to be successful in personal and professional life. Dear listener, education provides us with various types of knowledge and skills. It is a continuous, slow and secure process of learning which helps us in obtaining knowledge. It is a continuous process which starts when we take birth and ends when our life ends. Dear audience, we should make our habits of learning always, all through life, from our teachers, parents, family members, and other related people in our life. We should learn to become a good person, learn to live in home, society, community, and friend circle. Attending school and receiving an education is extremely vital for every person, and especially those who want to achieve success. Dear listener, we all take birth in the same manner at the same planet. However, do not get same opportunity to receive such type of formal education which may lead every one of us towards success because the lack of money and knowledge of parents. So it is our responsibility to provide good opportunity to those who are suffering from the lack of means and help them get education. Here I wind up my speech. Thank you. Dear audience, as the next speaker, I would like to call Mr. Hamid Abbas. Please come and deliver his speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank you for giving me this golden opportunity to speak some words on the topic of respect and value. Dear audience, we all use the words respect quite often, but what does it mean? It means esteem for the worth or excellence of a person. First of all, we should respect ourselves. Each one of us is created by Allah. Each one of us is unique, a very special creation of Allah. Therefore, each one of us should value ourselves highly. Secondly, we should respect our elders.
It includes our parents, elders, and teachers. In doing so, we are respecting not only their age, but their wisdom and the good they have done to society. Thirdly, we should respect the law of our government, our nation, our national anthem, and our national flag. फेसबुक पर ना जैसा जो दिया ऑफिशियल पेजवा पर जो लिंकवा निकाल के ग्रुपवा में डाल देता कि लोग देखो. Finally, let it be noted that love and respect go hand in hand. The Quran says that a husband should love his wife, and the wife in turn must respect her husband. So let's respect all those people. Who come to our way, even those who hold a different opinion than ours. Here I can conclude my speech. Thank you. Dear audience, as the next speaker, I would like to call Mr. Rashiduddin. Please come and deliver his speech. पाए सुहेल पाए दे बताओ. Teachers, guests, and my dear audience, I am delighted to be a part of Republic Day celebration, gathering, and got a chance to speak on the topic of time. It's my pleasure. Dear audience, time is precious, which plays a significant role in everyone's life. We all are aware of the proverb that is, time and the tide for none. No one can discontinue the flow of time. Once the time is gone, it never comes back. So it is better to respect the time and consume it wisely. For living a better and happy life, it is beneficial. Moreover, time is more appreciated than money. It is because we can earn money in any scope, but it's impossible to make time back. We should thank our Allah who give a life and to think how to make a better life. Here I conclude my speech. Dear audience, now I would like to invite Abbas Jadi to recite a poem on Republic Day written by Shaleen Mustar. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आज़ादी की नज़्म 26 जनवरी शमीम मुश्ताक साहब का हुक्म है। ये कलाम हम लोगों ने ज्यादा उन्हीं की मेहनत है। 8-10 साल पहले जब मारुसिया में ज़ेर तालीम थे तो उन्हीं की ज्यादा मेहनत है, ये लिखा गया था। उनका हुक्म है, सर आंखों पे मैं पढ़ता बतौर खास मुलाजा फरमाएं। आई है जनवरी खुशियों का चाम लेकर, आई है जनवरी खुशियों का चाम लेकर। ये साल अपना गुजरे अपना गुज़रे मालिक का नाम लेकर। और आओ चले सिरे से एक दो सिरे तक, आओ चले सिरे से एक दो सिरे तक। दुनिया में हम
दुनिया में हम मोहब्बत का एक पयाम लेकर ये साल अपना गुज़रे मालिक का नाम लेकर आजादी की हिफाजत करना है फर्ज अपना आजादी की हिफाजत करना है फर्ज अपना निकले थे सर हथेली निकले थे सर हथेली पर गुल कलाम लेकर ये साल अपना गुज़रे मालिक का नाम लेकर और हमको तो अपनी मेहनत की रोटियां हैं खाने हमको तो अपनी मेहनत की रोटियां हैं खाने हम क्या करेंगे यारो हम क्या करेंगे यारो माले हराम लेकर ये साल अपना गुज़रे मालिक का नाम लेकर और जालिम भी तक गया तो ले लेगा चाँद तुम्हारे जालिम भी तक गया तो ले लेगा चाँद तुम्हारे घोड़ा कभी न चलना घोड़ा कभी न चलेना तुम पे लगाम लेकर ये साल अपना गुज़रे मालिक का नाम लेकर और हमें तो गांधी जी ने हैदर गुजर सिखाया हमें तो गांधी जी ने हैदर गुजर सिखाया दुश्मन से क्या करेंगे दुश्मन से क्या करेंगे हम इंतकाम लेकर ये साल अपना गुज़रे मालिक का नाम लेकर और आखिरी शेर बतौर खास हाफिज जी आपके हवाले मेरा शिकम तबीब कब से मरोड़ता है मेरा शिकम तबीब कब से मरोड़ता है हम क्या करेंगे यारो हम क्या करेंगे यारो शरबत जुकाम लेकर ये साल अपना गुज़रे मालिक का नाम लेकर और मक्का भी दुआ के साथ खुलासा करना जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो लोगों ने मिल के लिखी है ज्यादा मेहनत उन्हीं की है मौलाना शमीम साहब की बतौर खास खुलासा फरमाए है शायरी पे शके कुछ जिनको शमीम मेरे है शायरी पे शके कुछ जिनको हुज़ैफा मेरी है शायरी पे शके कुछ जिनको शमीम मेरे रख दे रख दे न
जाना मेरे के आई है जनवरी ये खुशियों का जाम लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Dear audience, now I want to call Mr. Abu Ilhan sir to deliver speech. Please come and deliver speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Honorable guests, respected teachers, and dear all. Today I am going to speak about 26 January with the students of MEF gathered here to celebrate Republic Day and to know the importance of this day. Dear audience, Republic Day is a national festival and is celebrated on 26th of January on 26th January of every year. This day is declared as a national holiday. The people celebrate this day with a lot of zeal and happiness. The President of India raises the national flag on Rajpath in New Delhi. It is followed by a 21-gun salute and the national anthem. People from all over the country visit the Rajpath to view the grand celebration of Republic Day. The first president who hosted the flag ceremony was Dr. Rajendra Prasad. Dear friends, India had been free from the control of British on 15th of August 1947, but 26th of January 1950 is given much importance just because of becoming India's self-governing country. And complete republican unit of this day, as well as the Constitution of India, came into force in the same day. In schools, colleges, government offices and private organizations, the celebration is enjoyed with full enthusiasm. March passes and the parade takes place in schools along with the other functions. Many schools distribute sweets to the students. The people celebrate the spirit of freedom and forget the difference between them such as caste, religion, language and culture. We should thank our freedom fighters and especially Dr. Bhimrao Ambedkar who wrote our constitution. Here I conclude my speech. Thank you. Dear audience, as the next speaker, I would like to call Mr. Shahid sir. Please come and deliver speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Honorable guests and my respected teachers and my dear friends. As we all know that we have gathered here for the Republic Day celebration. I am excited and glad to get a chance to say something about our country. This year, we are celebrating 72nd Republic Day of our country. We celebrate Republic Day on January 26th, the day when the Constitution of India came into effect. I am proud to be a citizen of India, which ensures the fundamental of rights every citizen, such as right to equality, freedom, culture, education, caste, and religion. On this auspicious occasion, let's bow our heads before the memories of India's freedom fighters and great leaders. This is an occasion to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity, and equality among all our citizens. Here I conclude my speech. Thank you. Dear audience, as the last speaker, I would like to call Mr. Asim. Please come and deliver his speech.
चालू है चालू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I would like to thank you for giving me this golden opportunity to speak somewhat on the topic of money. No one can deny the importance of money because it is the most necessary thing that we require. Just like you need food to live, similarly you need money to survive. It is difficult to sustain without money as it is the basic necessity. In order to live a happy life, you need money. You need money from buying the necessary stuff to paying the fee for your kids. Renting the home, you need money for everything. Dear audience, you can't imagine your life without money, and therefore it is important to have a proper balance for a good life. Money gives you the ability to put an end to your financial problems, but this is only possible if you manage it in the right way. You can't, even with less salary, you can make out the most of your investments and a stable life. There are many people who are not saving but are in debt because of the mismanagement that leads to many problems. Lastly, I would like to say, if we have money, spend only on those things which is required for our life. Here I continue my speech. Dear audience, now our program is to date in. Before that, I would request Dr. Adnan Sahab to share his feedback and enlighten us with his precious words. और मुख्तलिफ मोहल्ले से तशरीफ़ लाए हुए सामीन हज़रात, सबसे पहले मैं आपको 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की दिल की गहराइयों के साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं को करीब कर देता हूँ। और आज इस मौके पर हमारी MEF कोचिंग के स्टूडेंट ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें हमारे सामने पेश की, बड़ी खुशी की बात है। बहुत कम मुद्दत में, बहुत कम वक्त में हमारे माहिर असातिज़े किराम ने उन्हें ऐसा मांझा है, ऐसा सिखाया है और उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस दिया है। मैं देख रहा था शुरू से कि उनके अंदर झिझक तो थी, लेकिन उतनी झिझक नहीं थी। इतने कम मुद्दत में वो इतनी अच्छी तरीके के साथ अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ अंग्रेज़ी में अपनी बातें कह रहे थे। बहुत सारी कमियां थीं, बहुत सारी अच्छाइयां थीं, लेकिन कमियों के साथ आदमी आगे बढ़ता है। कहते हैं कि बनाए जाते हैं पहलवा पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं पहलवा पैदा नहीं होते, ये बच्चे शिक्म मादर से जमा पैदा नहीं होते। मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, मैं बहुत मुबारकबाद दूँगा इन असातिज़े किराम को, जिन्होंने उन बच्चों को जो बिल्कुल इब्तदाई ABCD से इनको तालीम दी, इनको सिखाया और
अंग्रेजी में अपनी बातें कहने का वो हुनर बताया, कैसे आपको बातें करनी है, बच्चों से कुछ 2-4 बातें करनी है। आप अभी 3 महीने हुए हैं आपकी कोचिंग के, और आपने जो तरक्की की है बहुत मुबारकबाद से मुस्तहिक है। 2-4 बातें आपके जहन में रखनी होंगी। जब आप स्टेज पे आए, आपका हाथ खुला होना चाहिए, आपका हाथ जैकेट में या पॉकेट में नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, बातें बहुत अच्छी थी, कुछ बातें उसमें ऐड भी की जा सकती हैं, लेकिन जो बातें थी बहुत अच्छी थी। आप जहाँ कुछ झिझक महसूस करें, जहाँ भूल जाएं, आप वहाँ पे आपको डगमगाना नहीं है। आपने जो दूसरे सेंटेंस आपने जो याद कर रखे हैं, जो आपके जहन में है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ जाना है। मैं फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरे मोहल्ले से आए हुए जो हमारे मेहमान हजरात हैं या सामीन हैं, उनको ये बताते हैं कि हमारी कोचिंग यानी मारूफी एजुकेशनल फाउंडेशन तकरीबन 3 महीने से अपने खिदमात अंजाम दे रही है। उसका दूसरा सेशन शुरू होने जा रहा है। 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। आप हजरात अपने पास पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने मुताल्लिकीन को राग़िब करें कि आप मारूफी एजुकेशनल फाउंडेशन में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला लें और अपनी अंग्रेज़ी की इस्तेदाद रीडिंग की, पढ़ने की हो, बोलने की हो, आप उसमें इजाफा करें। हजरात, ये 26 जनवरी है, जैसा हमारे बच्चों ने बताया कि 72वां ये जो में जमहूरिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हम क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, तमाम बातें इन्होंने बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फॉर्मेट किया गया भीमराव अंबेडकर और उनके कलीग्स के द्वारा, जब इनकी तश्कील दी गई, इसको लिखा गया और जब इसकी अमल आवरी शुरू हुई, वो 26 जनवरी का दिन था, 1950 का सन था। उसके बाद से ये अमल शुरू हुआ और इस कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम मज़ाहिब, तमाम कौम को खुली आज़ादी के साथ रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, उनको ये हक दिया गया कि एक बंदा अगर पढ़ने का हक रखता है, दूसरा बंदा भी पढ़ने का हक रखता है। एक बंदा अगर अपना इजहार करना चाहता है, दूसरा बंदा भी अपना इजहार करना चाहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको हासिल है। आप अपना इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा आपसे इत्तेफाक करे। दूसरे बंदे को ये हक हासिल है कि वो आपकी बातों से इख्तिलाफ रखे और आपकी बातों के साथ या आपके साथ डिस्कोर्स करे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये बतलाती हैं। जैसे हमारे तमाम साथियों ने, बच्चों ने बहुत मुख्तसर तरीके से, बहुत जामे अंदाज में थोड़ी थोड़ी बातें सब कह दी हैं। उसको बार बार दोहराना मेरा मकसूद नहीं है, लेकिन हम पुराशोक दौर से गुजर रहे हैं, जिस क्रूशियल टाइम से हम गुजर रहे हैं, हमें बार बार कौम को, नौजवान नस्ल को बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये जो दस्तूर है, ये जो आईन है, हमारे बड़े लोगों ने या दस्तूर के निर्माताओं ने इसे बनाया, हमें इसको छोटे से लेकर बड़े तक, पढ़े से लेकर अनपढ़ तक बताना है और हुकूमत वक्त को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाना है। हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, लेकिन हम कौम हैं, हम हिंदुस्तानी आने वाली हुकूमतों को बार बार उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, हम उसे बतलाना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बतलाता है कि आप ये करें, आप ये करें।
तकरीबन 50 दिनों से बड़ा अच्छा होता कि आज की स्पीच में हमारे बच्चों ने जो स्पीच दी है उसमें जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी शामिल करते। तकरीबन 50 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे जो नौजवान हैं, किसान हैं, उन्होंने जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हम आज मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन की इस स्टेज से हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उन्होंने देश के दस्तूर को और देश के आईन को बचाने के लिए जो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान दी हैं, जो अपने जानें कुर्बान दी हैं, हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और हम उनके साथ हर मौके पर भले से हम उनके साथ जिस्मानी तौर पर फिजिकली हम उनके साथ शरीक नहीं हैं, लेकिन रूहानी तौर से हम उनके साथ शरीक हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और एक बात जो मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से उनके बड़े जिम्मेदारों की तरफ से ये कही गई है कि आने वाले जो हजरात हैं, जो सामीन हैं, उनको बताई जाए कि हमारा गांव जिस खित्ते में बसा हुआ है और यहाँ पे जो लोग बसते हैं उनकी तालीमी पसमानदगी का क्या हाल है। वो पसमानदगी का हाल आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान का लगा सकते हैं कि मुस्लिम कौम की जो खानगी पसमानदगी का क्या हाल है। 2-3% सिर्फ जो है जाते हैं वहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन होती है। वैसे हमारे यहाँ से तो फॉर्मल एजुकेशन 2-3% जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन एक तरह की कड़ी है। हम ये मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन हमारी नस्लों को फॉर्मल एजुकेशन की तरफ रागिब करेगा। फिर वक्त एक कोचिंग की शक्ल में इसकी बुनियाद डाली गई है, लेकिन इसका मुस्तकबिल का प्लान हमारे जिम्मेदारों ने बड़ा अजीम रखा है। स्कूल की कोचिंग भी कराना है, स्कूल भी इंशाल्लाह कायम करना है और अच्छे इंतज़ाम और अच्छे इंसराम के साथ हमारी नस्ल को तालीम याफ्ता बनाना है। हम तमाम हाज़रीन से दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि आप जब यहाँ से जाएं, अपने पड़ोस में, अपने घर में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से बच्चे इस वक्त हम बच्चों ही सिर्फ कोचिंग करवा रहे हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को इस तरफ राग़िब करें। इंशाअल्लाह मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन की ये जो कोचिंग है, इसके बाद उनकी हो सकता है कि जहन खुले, आँखें खुले और वो अपने जो मकसद है या अपना गोल जो है वो अपने गोल को फिक्स कर सकें कि हमें क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम हजरात हमारी गुजारिश को कबूल फरमाएंगे और हमसे जो भी इंतज़ाम और इंतज़ाम में जब से मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन चल रही है, जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और कमियों को दरगुजर फरमाएंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी कोचिंग को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Now I would request Maulana Abu Rehan Sahab to share his feedback about this program. फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ध्यान दे, तो केस बन सकता है। दोबारा लटक रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जो फ्लैग है वो उल्टा है।
सामीन इकराम और मुख्तलिफ महलों से आए हुए लोग और हमारे सदर साहब प्रोग्राम के, मैं आप सभी लोगों को अपनी दिल की गहराइयों से 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना जो मुख्तसर प्रोग्राम है और मुख्तलिफ टॉपिक पे एमईएफ के स्टूडेंट अपने अपने ख्यालात पेश किए और तस्वीरें की, जो कि मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। एक कम वक्त में सीखा जो चंद महीनों की मुद्दत में मेहनत की और असातिज़ा के साथ मिल करके खुद भी मेहनत की और असातिज़ा हज़रात ने की, अपनी मेहनत की और इसको इन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दिया बोलने का कि वो चंद लोगों के सामने आकर के अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जो बिल्कुल अजनबी सी है, उसको सीखना फिर उसको उसमें आकर तब्दील करना, ये एक कमाल की बात है और इतनी कम मुद्दत में भी। तो मैं तो सबसे पहले तमाम असातिज़ा इकराम और जितने एमईएफ के कारकुनान हैं या फिर जो इसके स्टूडेंट्स हैं, सबको इस अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वो काबिल तारीफ़ हैं जिन्होंने इतनी कम मुद्दत में इतना अच्छा सफ़र तय किया हो। क्योंकि एमईएफ जो है वो अपने पूरा मारूफ के अंदर जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, मदारिस में तालीम हासिल करते हैं या चंद तालीम हासिल करने के बाद छोड़ दिए घर पे बैठे हुए हैं, इन सब के लिए एक छोटा सा अभी छोटे नहज पे शुरू किया गया है कि वो आगे एमईएफ में आएँ और कोचिंग के ज़रिए ये इंग्लिश लैंग्वेज को हासिल करें। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है कि ये तो वे ऑफ कम्युनिकेशन हो चुकी है। मतलब अभी पूरी दुनिया में जो इंग्लिश जो है बात करने का जरिया हो गया है। हम कहीं के भी हों, हम चाइना का हो, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन जब दो मुल्क के दो अजनबी लैंग्वेज वाले जब भी वो कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बनती है। लेकिन अब सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश जो है सब कुछ हो जाए। इंग्लिश जो है सिर्फ एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक लैंग्वेज है। अब इंग्लिश एक पूरा जो है वो नहीं कि मतलब अगर इंग्लिश नहीं आती तो मतलब कुछ आता ही नहीं है। ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब मैं शुरू में जब एमईएफ शुरू हुआ था तो मैं चंद दिन मैंने भी इसमें बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चों से गुफ्तगू करने के बाद जो बात फीडबैक मुझे मिला है, बहुत सारे बच्चे जो है दिल्ली या और दूसरे बड़े शहरों में जा करके ग्रेजुएशन या और सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके अंदर जो है इंग्लिश न बोल पाते न लिख पाते, इन सबका मलका नहीं है। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं वहाँ जाकर तालीम नहीं हासिल कर पाऊँगा। और लोगों के जो एक जो हेजिटेशन होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इंग्लिश से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं जाके किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बड़े शहर में अपनी आला तालीम नहीं हासिल कर पाऊँगा। इंग्लिश को सिर्फ जो है इतना समझें कि इंग्लिश मुझे कॉन्फिडेंस देगी और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसको ये ना समझें कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं है तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ समझे इस चीज़ को, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की है इस मामले में, तो वो यही कहते हैं कि यार इंग्लिश नहीं आती है, मैं आगे वहाँ जाके कैसे पढ़ूँगा, लोगों में मिलना जुलना, फिर उनसे बातें करना, ये सब कैसे होगा। तो मैंने उनको बताया कि इंग्लिश जो है सिर्फ जरिया है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा, ठीक है। जब इंसान क्राइसिस में होता है ना, तो फिर उसको एक नहीं कई एक रास्ते मिलते हैं उसको सीखने के वहाँ से। इसी तरह से जब एक कौम क्राइसिस में होती है तो वहाँ से उनको लीडर मिलता है। इसी तरह जब एक इंडिविजुअल पर्सन जब क्राइसिस में होता है उसको अनेक रास्ते मिलते हैं कि वहाँ से अपना रास्ता बनाए और वो उस रास्ते पर चले और अपनी मंजिल तय करें। तो यही चंद बातें हैं जिसको इस बात को ध्यान में रखें और इंग्लिश को पढ़ें, इंग्लिश सीखें और इस पर मेहनत करें।
लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के साथ साथ है, और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसको जैसे उर्दू है, हिंदी है, तो ये सब चीज़ें इसलिए कि ये सब जो और सब चीज़ें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं होती, इंग्लिश होती है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जैसे जनरल नॉलेज है, उर्दू है, हिंदी है, हर चीज़ से जो सब्जेक्ट बनता है उसका, वो हर चीज़ को मिला करके एक वो बनता है। फिर जाके वो उसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है वो जाके कहीं जाके वो एक टफ पेपर बनता है, तो उसमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है। तो इस वजह से इंग्लिश को तवज्जो दें ही, उसके साथ साथ और भी जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे जनरल नॉलेज है और भी दूसरी चीज़ें जो पढ़ना है, उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। बस यही चंद बातें थी जो ध्यान में थी, मैंने कही। बाकी बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की जो है कि हमारी MES कोचिंग जो है आगे बढ़े, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इसमें अपने पास पड़ोस से जो बच्चे हैं वो इसमें आके दाखिला लें। और जैसे कुछ बच्चे भी सारी मदरसे भी नहीं खुले हैं हर जगह की, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जा सकते मदरसे में या जहाँ भी पढ़ते हैं, तो जितना वक्त है उतना तो आगे कम से कम सीखें, क्योंकि अभी जो एक स्पीच इस पर भी थी कि टाइम रिसर्च, टाइम बहुत कीमती चीज़ है, तो जितना भी वक्त है हमारे पास उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ेंगे जो भी चंद दिनों में, हो सकता है हम जब वहाँ जाएँ तो इसके बलबूते में और अच्छा सीखने का मौका मिले, और ये हमारे लिए ये चंद महीने का सीखना इकरार बन जाए मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए। तो ये ना देखें कि मैं 2-4 महीने के लिए हूँ या 1 महीने के लिए मैं क्या सीखूँगा इसमें, बल्कि जितना भी वक्त है वो आके इसमें दाखिला लें, और इस पर फिर जितना जो भी वक्त है उसके साथ उसको यूटिलाइज करें और सीखें और अपनी स्किल्स को में इजाफा करें। सलाम। Dear audience, now I would request Maulana Abu Rihan Sahab Maulana Qasim Sahab to share his feedback about this program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd। वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और हाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप हज़रात को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही वो तलबा जिन्होंने तकरीरें पेश की या और दूसरे प्रोग्राम पेश किए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2 बातें मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। एक तो जो मैंने शेर पढ़ा है कि 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मुजाहिदीन आज़ादी के नाम पर हम कितने लोगों को जानते हैं, बहुत मुख्तसर नाम है। अभी हम अगर किसी बच्चे से कह दिया जाए तो मुजाहिदीन आज़ादी कितने थे, कौन कौन थे, तो 2-4 के अलावा शायद ही और कोई लोगों को बता पाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खुद हमारे मऊ के भी बहुत सारे नाम हैं जो मुजाहिदीन आज़ादी में शामिल हैं। तो हम ज़रूरत इस बात की है कि हम तारीख को पढ़ें, जो आज़ादी की असल तारीख है उसको पढ़ें, और जो मुजाहिदीन आज़ादी है जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनके हवाले ज़िंदगी से हम वाक़फ़ियत हासिल करें। और दूसरी बात, उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी ने जिस लिए अपनी जानें कुर्बान किए, उनका असल ख्वाब क्या था, क्या उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान बन चुका है या नहीं, अगर नहीं बना है तो फिर उसमें क्या कमियां हैं, उनका क्या ख्वाब था। और जैसा कि हम आज रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो इसका रिपब्लिक डे जो क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमल उसी दिन ये पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया था। उस दिन से हिंदुस्तान को एक मुकम्मल तरीके से एक खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क करार दिया गया था।
उसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान को तालीम की सहूलत होनी चाहिए। वो जो आला तालीम हासिल करना चाहे कर सकता है। कोई भी इंसान हिंदुस्तान में परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये उनका ख्वाब पूरा हो रहा है? अगर नहीं तो फिर इसको पूरा कौन करेगा? ये खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिलो जान से कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं फिर एक बार अपने तमाम मेहमानान किराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, साथ ही डॉक्टर अदनान साहब का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना हुसैन अहमद साहब नाज़िम मदरसा दियाउल उलूम, आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती बयान से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। नौनिहाल और तालीम याफ्ता और खुद अपने भतीजे मैं मौलवी अदनान साहब का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक बहुत बड़ी अंजुमन सजाई है, जिस अंजुमन के गुलदस्ते में मैं देख रहा हूँ बहुत से नौनिहाल जहाँ से और वहाँ के फूल की तरह आ रहे हैं, मेरे सामने हैं। मैं आज जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर आप लोगों के बीच आकर एक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपने इल्म के तहसील से मुतल्लिक और इल्म की तरक्की से मुतल्लिक आपने एक बज़्म और अंजुमन सजा रखी है। आज मौके की नज़ाकत से ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी कारकुनान से वेलफेयर मारूफी एजुकेशनल के सभी कारकुनान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है, जिसके तहत आपने तालीम व ताल्लुम बिलखुसूस इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने, उसमें होशियारी और तरक्की करने की बात कही गई है। बिल्कुल हकीकत है कि आज हम देखें कि इस जमहूरियत की बुनियाद पर हमें बहुत कुछ आज़ादी दी गई। हम मुस्लिम कंट्री के हैं, मुसलमान हैं और हमें इस मुल्क में जीने और मरने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। हमें अपने मजहब के मुताबिक, अपने मंशा के मुताबिक हमें तालीम देने और दिलवाने, पढ़ने, पढ़ाने और यहाँ तक के पोशाक वगैरह पर हम बिल्कुल आज़ाद हैं। मगर अफसोस कि आज जहाँ तक 70 बरस के बाद भी हम उस पहलू तक नहीं पहुँच पाए हैं जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। हालांकि आज से 70 बरस पहले अमीरुल-हिंद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लड़ाई के जमाने में हमेशा ये बात कही कि हमें दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हमें दुश्मन की जुबान जाननी जरूरी हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस पर हमेशा जोर दिया और बिरादरान वतन को भी ललकारा कि हिंदुस्तान में रह कर गुलामी से निजात हासिल करना है तो हमें जालिमों की जुबान सीखनी होगी, उनके जुबान में उनकी बात का जवाब देना होगा और अपनी बेकसी को उनके सामने जाहिर करना होगा। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं रहे,
उन जियाले और मतवाले नहीं रहे जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खा करके फांसी के फंदे पर लटक करके इस भारत की जमीन को सींचा और खून से लालाजार किया। आज वो नहीं समझ पा रहे थे कि आने वाली हमारी औलाद से सख्त करके जिंदगी गुजारे, मगर वक्त आते हैं, हालात आते हैं, उससे मायूस नहीं होना चाहिए। हालात से लड़ना, वक्त के तकाजे को नजाकत को समझते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना, ये हमारे अखलाक से सिखाया है। एक जमाना था कि मुहद्दिस हिंद शाह वलीउल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तन्हा बेड़ा उठाया। जब अंग्रेज ने कहा था ये मिल्कियत और मुल्क हमारा, हुकूमत हमारी होगी, अब किसी की बस नहीं चलेगी, तो मौलाना ने तन्हा ऐलान किया था कि बस अब हम गुलाम हो गए, अब जिहाद की जरूरत, हम अकेले ही चले थे, कारवां बनता गया। तो मेरी बात तो लंबी हो रही है, मुझको खिताब करने के लिए कहा गया, मगर हमारे नौजवान समझते होंगे कि तालीम के जो पेज से ये बहुत दूर है, क्योंकि इंग्लिश जानते नहीं, एजुकेशनल का नहीं जानते, वेलफेयर नहीं जानते, तो हमारे नौजवान समझते होंगे कि आए हैं बुढ़े छड़ी लेकर के, कुछ बताते नहीं इससे मुतल्लिक। तो मेरे नौजवानों, कौम के मुस्तकबिल को हम बताएं ना बताएं, कौम का मुस्तकबिल हो, हर कौम का मुस्तकबिल उसका जवान होता है, और जवान अनपढ़ है तो समझ जाओ कि वो खाई में है, घाटे में है। अगर जवान पढ़ा लिखा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई चोरी नहीं हो सकती, तुम्हारा हुनर छीना नहीं जा सकता। आज हमारे बहुत से बच्चे मायूस होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहते कोई नौकरी मिलने वाली है। माफ कीजिए मेरे नौजवानों, इस दिल में ख्याल मत करना कि नौकरी मिले ना मिले, हम इल्म हासिल कर करके अपने बुलंदी को हासिल करेंगे। हमारे इल्म को कोई चोरी नहीं कर सकता। इल्म है तो तुमको किसी से बात करने का सलीका, किसी से सलीके से बात करने की, तमीज से बात करने का आपको सलीका होगा। ये आयरे गहरे नक्शो खैरे अबे तबे रेरी तेरी वाली जुबान नहीं चलेगी। उसके सामने आप डट करके बहुत तरीके से आप बात करेंगे। सर ऐसी बात तो नहीं, हमारे दिल में यह ख्याल नहीं था, हमने तो कोई प्लान नहीं बनाया था। सर हमारे ऊपर यह इल्जाम, खड़े पर जवाब तो दे सकते पड़ सकते। और आज बहुत से इल्जाम लग रहे हैं पढ़े लिखे बच्चों पर, और जहाँ तक नजर उठा करके आप देखेंगे तो जितने ऊंची पढ़ाई वाले हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक, उन बच्चों का हश्र क्या हो रहा है। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। आमीन। और मैं क्या बात करूँ, एजुकेशन के मैं दस्तूर से वाकिफ नहीं हूँ, तो मैं अपने खुद समझता हूँ कि आज मैं आप लोगों को मस्जिद में सदाया हूँ। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, यौम जमहूरिया जिंदाबाद। नारा लगा दे, नारा नहीं लगा। अब मैं आसिफ जमाल साहब को 2 मिनट के लिए अपनी बात रखने के लिए दावत दे रहा हूँ।
अम्मा बाद और करिए। आज का मौका जश्न यौम जमहूरिया का है और हम इसी मुनासबत से यहाँ पे जमा हुए, लेकिन इस बज़्म का इनेकाद इस तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम है, उसका नाम मारूफी एजुकेशनल फाउंडेशन है। और माशाअल्लाह ये जिस वक्त से वजूद में आई है, हमेशा कोशिश रही है कि पूरा मारूफ के बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हों, और इसके लिए कई एक मीटिंग्स मुनाकिद हुई। मुझे लगता है कि जो सारी बातें वहाँ पे हुई उसको ज़मीन पे दिखने में अभी हम लोग को 3-4 साल तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो एक खाका तैयार होता है वो फ़ौरन ही अमल में नहीं आ जाता, उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। और इस तंजीम का जो खुसूसी मकसद है पूरा मारूफ की इल्मी पसमानदगी को दूर करना है। यहाँ के बच्चे आला तालीम में मुश्किल से कुछ फीसद कहा जा सकता है, 1% भी मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक नज़र उठाई जाए बहुत मुश्किल से गिने चुने लोग, जैसे अदनान साहब हैं और 1-2 नाम ऐसे मिल जाएंगे आला तालीम के लिए। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ के बच्चे आए, और अभी कुछ दिन पहले एक मरकज़ी हुकूमत से अक़लियती इदारा है, उसके लिए ये जो पैरामेडिकल का एक कोर्स होता है, बी फार्मा और डी फार्मा और नर्सिंग का भी, उसके लिए पूरा मारूफ में मैंने 7-8 लोगों से रब्ता कायम किया था कि कुछ बच्चों का फॉर्म भरवा दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि एक भी बच्चा नहीं मिल सका। यौम जमहूरिया की मुनासबत से मैं आईने हिंद की जो तमहीद है वो पढ़ना चाहता हूँ। हम भारत के आवाम मतानत व संजीदगी से हासिल करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी आवामी जमहूरिया बनाएं और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासत, आज़ादी ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत, मसावात व एतबार हैसियत और मौका, और इन सब में उख़ुव्वत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक़्क़ुन हो। आईने हिंद 26 नवंबर 1949 को लिखा जा चुका था, लेकिन इस पर दरार अमल इसको अमली जामा 26 जनवरी 1950 को पहनाया गया था, और तब से हमें मुकम्मल आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुस्लिम ममालिक में हमें आज़ादी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के आईन ने हमें आज़ादी दी है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। माशाअल्लाह। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मौलाना शाहिद अयाज साहब से गुजारिश करूँगा वो प्रोग्राम के ताल्लुक से महज चंद मिनट में अपने कीमती आरा का इज़हार फरमाएं और अपने गिरान अदब मशवरे से नवाजें। किसी का कोई सवाल हो मारूफ एजुकेशन फाउंडेशन के ताल्लुक से या तालीम के ताल्लुक से, तो सवाल कर सकते हैं। बस एक सवाल चाहिए, उसके बाद ये महफिल जो है प्रोग्राम पर पहुँची। जो बाहर से जो है मेहमान आए हुए हैं या दूसरे मोहल्ले से जो साथी आए हुए हैं, उनको किसी किस्म की कोई सवाल अगर है तो पूछ सकते हैं। मारूफ एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और 26 जनवरी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। अब प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूं। शुक्रिया।
तमाम हजरात तशरीफ रखें। आप हजरात के पानी पीने का इंतजाम किया गया है।